Hello students. In our last class, we had discussed the textbook and syllabus prescribed for your class. Today, I'm again here to discuss the first lesson of your English literature book. So get ready for it. Keep a notebook and a pen with yourself so that you could note down the hard words and their meanings or any other important points. If you like this video, press the like button and give your feedback in the comment section. Subscribe our channel for more updates in this regard. Thank you. Well, children, man is very inquisitive by nature. He has always some plans or questions in his mind, and he implements these plans or solutions in his professions in order to improve his performance. In the story Three Questions, written by Leo Tolstoy, there is a king who has some certain questions in his mind, whose answers are very important for him to serve the people and his kingdom perfectly. So now let us read this beautiful story by Leo Tolstoy in details. It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. So, let us see the meaning of occurred. Occurred का मतलब क्या होता है? It means exist करना, होना. It once occurred to a certain king. किसी राजा के दिमाग में आया, exist किया ये question that if he always know कि अगर उसे हमेशा पता हो the right time to begin everything, किसी भी काम को करने का सही वक्त क्या है, अगर उसे यह पता हो, if he knew who were the right people to listen to, अगर उसे यह पता हो कि कौन से लोग right हैं, किन्हें उसे सुनना चाहिए, and whom to avoid, और किन्हें उसे avoid करना है, नज़रअंदाज करना है, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, अगर उन्हें यह पता हो कि सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा है, he would never fail in anything he might undertake. अगर उन्हें ऐसा पता हो कि right time to begin any action क्या है, right people कौन से हैं, और most important thing to do, करने के लिए सबसे important काम क्या है, तो वो कभी भी किसी भी काम में फेल नहीं करेंगे जिसे वो अंडरटेक करते हो. अंडरटेक करने का क्या मतलब होता है? शुरू करना, टू प्रॉमिस टू डू समथिंग. And this thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would tell him
what was the right time for every action, and who were the most necessary people, and how he might know what was the most important thing to do. जब से ये thought उसके mind में आया, this thought having occurred to him, he had it proclaimed. Proclaimed का मतलब होता है, it means announced throughout his kingdom. पूरे किंगडम में अनाउंस करवा दिया that he would give a great reward. वो बहुत सारा रिवॉर्ड, बहुत सारा इनाम देंगे to anyone who would tell him that what was the right time for every action. किसी को भी जो उन्हें यह बताएगा कि right time for every action क्या है, most necessary people कौन है, और most important thing to do, what is that. And learned men came to the king, but they all answered his questions differently. Learned men means scholars, विद्वान. बहुत तरह के विद्वान राजा के पास आए. उन्होंने इन क्वेश्चंस का डिफरेंटली अलग अलग जवाब दिया. In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months and years and must live strictly according to it. पहले क्वेश्चन के जवाब में कुछ लोगों ने कहा that to know the right time for every action, किसी भी काम के सही समय को जानने के लिए one must draw up in advance, पहले से ही एडवांस में, जैसे हम लोग प्लानर बनाते हैं कि when we have to complete this chapter, after that we have to do this, after that we have to complete this one and learn this one, और उसे हम वीकली, मंथली, डेली के हिसाब से प्लान करते हैं. वैसे ही कुछ लोगों ने राजा को सुझाव दिया कि एडवांस में टेबल ऑफ डेज, मंथ्स, ईयर्स ड्रॉ करें एंड मस्ट लीव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट. उस काम को इस डेली, मंथली और ईयरली हिसाब से बांट लें और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें. ओनली दस सेड दे कुड एवरीथिंग बी डन एट इट्स प्रॉपर टाइम. सिर्फ इसी तरीके से हर चीज़ को सही समय पर किया जा सकता है. Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action. Others declared, बाकियों का कहना था, दूसरे लोग का ऐसा कहना था that it was impossible to decide beforehand. किसी भी चीज़ को beforehand डिसाइड करना, यानी ऑलरेडी डिसाइड कर लेना, पहले से ही डिसाइड करके रखना, बहुत ही इम्पॉसिबल. फॉर एवरी एक्शन, हर काम के लिए पहले से डिसाइड करना इम्पॉसिबल है. बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी एब्जॉर्ब्ड इन आइडल पास टाइम्स. एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है तल्लीन होना, टू बी डीपली engrossed in something, giving all attention to something. Idle means lazy and pastimes means recreations. तो इसका मतलब ये नहीं कि जब किसी चीज़ को प्लान न करें तो फिर हम खोए रहें आइडल पास टाइम्स में. वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल. क्या कहा गया कि हमेशा हर चीज़ पर अटेंशन हो. दैट वॉज गोइंग ऑन, जो कुछ भी हो रहा है सब पर ध्यान दिया जाना चाहिए. एंड देन डू व्हाट वॉज मोस्ट नीडफुल, और तब जो सबसे नीडफुल है वो काम करें. Others again said that however attentive the king might be to what was going on, चाहे राजा कितने भी अटेंटिव क्यों ना हो लें, कितने भी केयरफुल, प्रॉम्प्ट क्यों ना हो लें to what was going on, कि क्या कुछ चल रहा है, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action. चाहे कोई कितना भी अटेंटिव क्यों ना हो, लेकिन हर काम के लिए करेक्टली डिसाइड करना ये
एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल है, अकेले का यह काम नहीं है। बट दैट ही शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। क्या कहा गया कि राजा के पास वाइज मैन की, बुद्धिमानों की एक काउंसिल होनी चाहिए, हु वुड हेल्प टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग, जो राजा की मदद करेंगे टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग, कि हर काम के लिए राजा को सही समय बता सके। But then again others said there were some certain things which could not wait to be led before a council. तब वापस से दोबारा से दूसरे विद्वानों ने कहा, यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा था, एक दूसरे के दिए गए सजेशंस से जो स्कॉलर्स थे, जो लर्नेड पीपल थे, पर्सन थे, वो एग्री नहीं कर पा रहे थे, सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। Then again others said there were some things which could not wait to be led before a council. कुछ काम ऐसे भी हैं जो हम कौंसिल के सामने रखने के लिए छोड़ नहीं सकते। मतलब कि जिन काम कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिन्हें हम रोक नहीं सकते कि वो कौंसिल को पहले डिस्कस कराया जाए और तब किया जाए। कौंसिल के सामने डिस्कस करने के बाद ही वो काम हो। उन कामों में कुछ काम नहीं भी आते हैं, बट अबाउट विच वन हैड एटॉम्स टू डिसाइड। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें एटॉम्स डिसाइड करना पड़ता है, हमें तुरंत डिसाइड करना पड़ता है वेदर टू अंडरटेक देम और नॉट, कि उन्हें अंडरटेक किया जाए, शुरू किया जाए कि नहीं किया जाए। इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊं। सपोज उस किंगडम के किसी कॉलोनी में आग लग जाए, तो क्या किंग को उस समय क्या करना चाहिए? इसके लिए काउंसिल को पूछना, काउंसिल के सामने विचार विमर्श करना, क्या यह शोभा देगा? नहीं। उस समय जो भी उसे उचित लगे वो विदाउट काउंसिल के सामने डिस्कस किए हुए भी उसे ऑर्डर करना पड़ सकता है कि क्या किया जाए इस संदर्भ में। तो बस यही कहने का तात्पर्य बस यही है। बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट वन मस्ट नो बिफोर हैंड व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, क्योंकि वैसे काम जो हम काउंसिल के सामने नहीं रख सकते, अचानक से बताना हो, तो इसके लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि होने क्या वाला है। ऐसा कुछ विद्वानों का सोचना था। इट इज ओनली मैजिशियंस हु नो दैट। सबने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि मैजिशियंस ही बता सकते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट कंसल्ट मैजिशियंस। कुछ विद्वानों ने यहाँ तक कह डाला कि किसी भी एक्शन के लिए राइट टाइम को डिसाइड करने के लिए मस्ट कंसल्ट, हमें मीन्स राजा को मैजिशियंस को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। कंसल्ट करने का मतलब क्या होता है? डिस्कस करना। तो मैजिशियंस से डिस्कस करना सबसे ज़्यादा जरूरी है जब भी ये जानना हो कि राइट टाइम क्या है किसी काम को शुरू करने का। Equally various were the answers to the second question. ठीक इसी तरह से दूसरे सवाल के लिए भी बहुत से जवाब आए। Some said the people the king most needed were his counselors. कुछ ने कहा ये काउंसिलर्स इंपॉर्टेंट है, काउंसिलर नहीं, मेंबर ऑफ द काउंसिल। अदर्स द प्रिस्ट्स, किसी ने प्रिस्ट को कहा, पुरोहित, पुजारी, पंडितों को कहा। अदर्स द डॉक्टर्स, कुछ ने कहा डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट है। वाइल सम सेड द वॉरियर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कुछ ने कहा वॉरियर्स जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे योद्धा हैं, युद्ध लड़ने वाले, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टू द थर्ड क्वेश्चन एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन,
Some replied that the most important thing in the world was science. तीसरे क्वेश्चन में जहां पर सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन पूछा गया, सबसे इम्पोर्टेंट काम जो पूछा जा रहा है, तो वहां पर लोगों ने कहा, बहुत से लोगों ने कहा कि साइंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अदर्स सेड इट वाज स्किल इन वॉरफेयर. कुछ ने कहा कि स्किल, वॉरफेयर की जो स्किल होती है, युद्ध कौशल, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड अदर्स अगेन दैट इट वाज रिलीजियस वर्शिप. कुछ लोगों ने जो धार्मिक क्रियाकलाप है, पूजा पाठ है, उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया. All the answers being different, the king agreed with none of them. सारे आंसर जो थे वो डिफर करते थे एक दूसरे से, और किंग उनमें से किसी से भी अग्री नहीं कर पाए. राजा को उसमें से कोई भी जवाब पसंद नहीं आया. एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन. राजा ने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया. But still wishing to find the right answers to his questions, he decided to consult a hermit. अब भी उनके दिमाग में ये बात थी कि उन्हें राइट आंसर्स चाहिए, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, कंसल्ट किया, डिस्कस किया, डिसाइड किया डिस्कस करने का. किससे? एक हर्मिट से. हर्मिट कौन होता है? वन हु हैज रिनाउंस्ड द वर्ल्ड फॉर रिलीजन. सन्यासी लोग. तो उस राजा ने डिसाइड किया कि वो एक हर्मिट हैं, उनसे मिलेंगे, वर्ल्डली रिनाउंड फॉर हिज विजडम. और वो हर्मिट कैसे हैं? ही वॉज वेरी वॉइस एंड रिनाउंड फॉर हिज विजडम. रिनाउंड मीन्स फेमस, बहुत जाने माने हैं अपनी बुद्धिमता के लिए. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड. हियर वुड मीन्स फॉरेस्ट, which he never quitted, left. हर्मिट एक जंगल में रहते थे जिसे वो कभी भी छोड़ के नहीं जाते, यानी वहां से बाहर नहीं निकलते थे. एंड ही रिसीव्ड नन बट कॉमन फॉक. वो किसी से भी नहीं मिलते थे, सिर्फ कॉमन पीपल से मिलते थे. सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथ्स. पुट ऑन मीन्स टू वियर. राजा को कॉमन मैन बन के जाना पड़ेगा क्योंकि वो कॉमन फॉक को ही मिलते हैं. सो ही पुट ऑन सिंपल क्लॉथ्स एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट्स सेल डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स. राजा ने साधारण कपड़े पहने और उनके सेल तक पहुंचने से पहले, सेल का मतलब छोटा सा जो घर कह लो या छोटा सा रूम कह लो, तो उस सेल तक पहुंचने के पहले राजा ने क्या किया, डिसमाउंट कर गए अपने हॉर्स से. डिसमाउंट का क्या मतलब होता है? डिसमाउंट मीन्स टू गेट ऑफ समथिंग दैट यू राइड. आप किसी चीज़ पर कोई मीन्स बाइसिकल या घोड़े, बहुत सारी चीज़ों को लोग राइड करते हैं, तो वहाँ से उतरना, टू गेट ऑफ फ्रॉम देयर, दैट इज कॉल्ड डिसमाउंटेड. तो वो अपने हॉर्स से डिसमाउंट कर गए, यानी पैदल गए. एंड लीविंग हिज बॉडीगार्ड्स बिहाइंड वेंट ऑन अलोन. हर्मिट के सेल तक पहुंचने के लिए कुछ दूर तो वो अपने हॉर्स से अपने बॉडीगार्ड्स के साथ गए, लेकिन सेल तक पहुंचने के लिए वो पैदल गए. ही डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स एंड लिविंग हिज बॉडीगार्ड्स बिहाइंड वेंट ऑन अलोन. अपने बॉडीगार्ड्स को पीछे छोड़ करके अकेले चले गए. Because he was pretending that he was a common man, that's why he left the horse and the bodyguards behind. When the king approached, जब राजा वहां पहुंचते हैं, the latter, the hermit, was digging earth. वो उस समय हर्मिट क्या कर रहे थे? वो सन्यासी उस समय क्या कर रहे थे? डिगिंग अर्थ. वो अर्थ डिग कर रहे थे, यानी क्यारियां तैयार कर रहे थे, जमीन खोद रहे थे. इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपने हट के सामने. सीइंग द किंग ही ग्रीटेड हिम. उन्होंने क्या किया? राजा को
ग्रीट किया, विश किया एंड वेंट ऑन डिगिंग, और अपनी खुदाई के काम में लग गए. वो एक्चुअली खेतों को तैयार कर रहे थे. द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक. हर्मिट दिखने में बहुत ही कमज़ोर, पतला, अनहेल्दी सा दिखते थे. एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इन टू द ग्राउंड, टर्न्ड अ लिटिल अर्थ, ही ब्रीथेड हैवीली. जब भी वो अपने स्पेड को स्टक करते, यानी ज़मीन पर सेट करते, ज़मीन खोदने के लिए, जब भी अपने स्पेड को, अपने कुदाल को, दिस वन इज स्पेड, जब भी स्टक करते एंड टर्न्ड अ लिटिल अर्थ, थोड़ा सा मिट्टी उलटते, ही ब्रीथेड हैवीली, वो बहुत जोर जोर से सांस लेने लगते थे. The king went up to him and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. राजा उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं आपके पास आया हूँ आपसे 3 सवालोों के 3 क्वेश्चंस के आंसर को जानने. How can I learn to do the right thing at the right time? कैसे मैं ये समझ सकूं, कैसे मैं ये जान पाऊं कि किसी भी काम को शुरू करने का राइट टाइम क्या है. Who are the people I most need? कौन से लोग हैं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं. And whom should I therefore pay more attention? किन पर मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है than to the rest, बाकी लोगों के अलावा. And what affairs are the most important? What affairs, कौन से matters जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं मेरे लिए, यानी किंग के लिए, और जिन्हें सबसे ज़्यादा पहला अटेंशन देने की ज़रूरत है. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट आंसर्ड नथिंग. ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंस्ड डिगिंग. उन्होंने सब कुछ सुना, हर्मिट ने सुना बट आंसर नहीं किया. ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड. स्पैट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ स्पिट. आपने देखा होगा क्रिकेटर्स भी जब लगातार बॉलिंग कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि वो थोड़ा सा स्पिट करते हैं और फिर से बॉल्स को रेडी करते हैं. ठीक उसी तरह से वो अपने हैंड पर स्पिट करते हैं एंड रिकमेंस्ड डिगिंग. रिकमेंस्ड का क्या मतलब होता है? टू स्टार्ट अगेन. यानी राजा को सुन लेने के बाद हर्मिट ने दोबारा से अपना काम करना शुरू कर दिया. You are tired, said the king. Let me take the spade and work a while for you. राजा ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप टायर्ड हैं, आप थक गए हैं. Let me take the spade and work a while for you. उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो उन्हें स्पेड दे दें. जो हर्मिट है वो राजा को स्पेड, वो कुदाल जो है वो दे दें और थोड़ी देर काम करने दें अपनी जगह. Thanks, said the hermit, and giving the spade to the king, he sat down on the ground. हर्मिट ने स्पेड किंग को दिया और ग्राउंड पे बैठ गया. When he had dug 2 beds, राजा ने जब 2 क्यारियां तैयार कर ली. Here beds means that lining, that prepared lining in the earth where seeds are sown. तो इन बेड्स को बनाने के बाद, खोदने के बाद, द किंग स्टॉप्ड, राजा रुक गए, एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस. उन्होंने अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया. द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर. हर्मिट ने दोबारा से फिर वापस से कोई जवाब नहीं दिया. बट रोज, इस बार वो राइज उठ गए. स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, अपना हाथ फैलाया, मांगा. फॉर द स्पेड के लिए अपना हाथ आगे किया. एंड सेड, नाउ रेस्ट अ व्हाइल. उन्होंने, हर्मिट ने किंग को कहा, रेस्ट अ व्हाइल एंड लेट मी वॉक अ बिट. अब मुझे थोड़ी देर काम करने दो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग. राजा ने उन्हें स्पेड नहीं दिया और डिगिंग का काम कंटिन्यू रखे. 1 hour passed and another. The sun began to sink behind the trees and the king at last stuck the spade into the ground and said. शाम हो गई, बट अभी तक हर्मिट का कोई रिएक्शन नहीं था आंसर्स को लेकर. लास्टली राजा ने अपना
स्पेड जो है वो ग्राउंड में स्पेड किया और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस. इफ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. राजा ने कहा कि मैं आपके पास वाइज मैन, मैं आपके पास अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए आया था. अगर आप मुझे आंसर नहीं दे सकते, टेल मी सो, मुझे बताइए, आई विल रिटर्न, मैं वापस चला जाऊंगा. Here comes someone running, said the hermit. Let us see who it is. hermit ने क्या कहा? कोई आ रहा है. Here comes someone running. कोई दौड़ा हुआ इधर ही आ रहा है. Let us see who it is. चलो देखते हैं कौन है. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. We will read the rest of the story in our next class, which will be uploaded very soon. Thanks for watching. Thank you. Have a nice day.